Good morning, students. How are you? So, I hope all you are fine and well. You might have question why this is night time. Sir is saying always good morning because always I tell you that first meeting is always good morning. That may be afternoon, that may be evening, or that may be night. So, without wasting our time. So we are going to look our chapter. You can see this is for 8th class. The name of the book is Communicative English. This is for 8th class and Holy Faith International publication. So today our discussing chapter will be chapter number 3.2. Okay, the barber's talk. We know the barber. Okay, is a talkable person. Whenever we go for shaving or whenever we go for cutting hair, he talk more and more. He talk too much. Sometimes we get happy by hearing his talking, and sometimes we get bored. Like the same time, here is an incident that a news reporter and the barber both were talking means the barber is telling to him an event what had happened in his life. The reporter was too busy. Okay, the reporter was too busy and he wanted to go earlier to his office. One day he has seen to the barber shop. He had beard after a long time. He could save himself, so that is why he wanted to save himself, and so that he has seen to the barber shop. There were several persons, but the barber said, "Next number is here," so that he went there. And after what happens, we will read this chapter, then we can understand. हम अक्सर जानते हैं कि बार्बर जो है वो बड़ा टॉकेटिव पर्सन है, वो ज़्यादा बोलता है ना। कभी कभी उसका बोली को हम सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है उनसे सुनना, उससे बातें करना, लेकिन कभी कभी हमें बोर भी लगता है। वो इधर को उधर की बातों को लंबा करते रहता है और ताकि अपना ग्राहक को, अपना कस्टमर को वो आकर्षित कर सके। ठीक ऐसा ही एक स्टोरी को हम यहाँ पे देखते हैं, द बार्बर टॉक्स, ये स्टोरी का नाम है और जो लेसन है 3.2 पेज नंबर 77। तो एक रिपोर्टर होता है जिसका दाढ़ी बहुत बढ़ चुका होता है। वो चाहता है कि वो किसी भी तरह से उसको सेव करेगा और काफ़ी दिनों के बाद वो उस बार्बर के शॉप पे जाता है, लेकिन जाने के बाद देखता है कि वहाँ थोड़ा भीड़ जमा हुआ है, तो वो स्किप करने के लिए कोशिश करता है। तो बार्बर कहता है कि साहब अभी इसके बाद ही आपका नंबर आएगा। तो उसके बाद बार्बर वहाँ पे चला जाता है और अपने शेव कराने के लिए। उसके बाद बार्बर उसको रिपोर्टर वहाँ चला जाता है और बार्बर उसको शेव करते करते एक कहानी सुनाता है और फिर आगे क्या होता है हम उसको पढ़ करके समझे। Barbers usually talk a lot. They love to talk and talk non-stop while playing their razor and scissor. They go and relating their tales in which the customer has a little interest. The poor customer has to keep listening for fear of the sharp razor, and which is all the time so near his neck. बार्बर जो किस प्रकार का व्यक्ति होता है, जिसे मैं पहले बताया, ये बड़ा टॉकेटिव मैन होता है, बहुत बोलने वाला व्यक्ति होता है और ये बोलता ही जाता है, लेकिन कभी क्या नहीं करता, वो अपनी बोलती को स्टॉप नहीं करता। वो किस समय करता है, जिस समय सीजर को बालों के ऊपर चलाता है और जिस समय अपना रेजर को अब हमारे गालों के ऊपर, यानी हमारा जो नेक है उसके ऊपर वो चलाता है और वो कई सारे
मतलब बातें करते रहता है, कई सारे कहानी वो बोलता रहता है। कुछ कस्टमर तो मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते और कुछ कस्टमर तो यूं ही सुनते रहते हैं। तो ये सुनते सुनते कस्टमर के अंदर भी भय रहता है, क्योंकि वो शार्प रेजर को लेकर के वो क्या करता रहता है, हमें शेविंग करता रहता है और हमारा जो नेक है बिल्कुल उसके पास ही रहता है। A busy newspaper reporter couldn't find time to have shave for many days. Then one morning he happened to pass by the barber shop. He stepped in. There he found the chair full of customers and had a mind to slip away. But the barber fixed his eyes upon him and said, "You are next." तो एक न्यूज़ रिपोर्टर है, बड़ा बिजी व्यक्ति है। वो क्या करता है, एक दिन मतलब काफ़ी समय के बाद वो बार्बर के पास जाता है ताकि उसका दाढ़ी को वो शेव कर सके। और जैसे वहाँ पे वो पहुँचता है, देखता है कि यहाँ पर तो कस्टमर बहुत थे, है ना। तो फिर वो किसी भी तरह से स्किप करने के लिए चाहता है, यानी चला जाने के लिए सोच रहा है। जैसे वो चला जाने के लिए सोच रहा है, तभी बार्बर उसको कहता है कि देखो आप मत जाओ, अभी आपका नंबर आएगा। तो फिर बार्बर न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पे इंतज़ार करता है। द रिपोर्टर sank into a hard chair nailed to the wall. In a few moments, the customer in the chair got up and the reporter got that seat. कुछ समय वो वहाँ पे इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद जो कस्टमर वहाँ बैठ कर के मतलब कटिंग या शेविंग करवा रहा था वो उठ गया। उठने के बाद अभी ये न्यूज़ रिपोर्टर जो है वहाँ पर वो बैठ जाता है। बैठने के बाद उसको पूछा हेयर कट, आस्क द बार्बर, शेव, सेड द रिपोर्टर। रिपोर्टर को पूछा कि हेयर कट करना है, तो रिपोर्टर ये जवाब देता है कि नहीं, मुझे शेविंग करना है। द बार्बर इन्वॉल्व्ड द reporter in a large cloth and with a careless hand spread a great brushful Swedish leather across his mouth. Then he began to talk. तो बार्बर क्या करता है, यूजुअली जो क्लॉथ वो मतलब शरीर के ऊपर रखता है और वही क्लॉथ को उसका शरीर के ऊपर रख देता है और रखने के बाद फिर अपना कार्य को वो शुरू करता है। लेकिन उसके साथ साथ वो उसको बातें करने भी चालू करता है। तो अपनी बातें में क्या कहता है, सम पीपुल। अब ये एक इंसिडेंट रहा जो अभी बार्बर अपना कार्य को शुरू किया। अब बार्बर क्या करता है, उसको सेव करते करते वो 2 स्टोरी वहाँ पे बताता है। तो पहला स्टोरी हम देखेंगे और उसके बाद हम अगर टाइम बचेगा तो आज सेकंड स्टोरी देखेंगे, नहीं तो फिर 2 पार्ट करके हम उसे देख सकते हैं। Some people have their dead shaved before burying them. Once I was sent for a shave a dead man. It was at 706 Paul Street. Barber don't much like a job of that kind, although they get $5 to $10 for this work. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने मरे हुए लोगों को क्या करते हैं कि शेव करवाते हैं, उसको मतलब बरिंग करने से पहले, यानी काटने से पहले या जलाने से पहले। तो इसी काम के लिए भी डेड व्यक्ति को शेव करने के लिए बुलाया जाता है। तो ये घटना हुआ कहाँ पर है, स्ट्रीट नंबर 706 जो पॉल स्ट्रीट कहा जाता है। तो बार्बर को ज़्यादा पसंद नहीं होता ये काम करने के लिए, लेकिन जैसे ये करता है तो उसको 5 से लेकर के $10 तक मिल जाता है। तो जैसे एक कॉल आता है, I started at about 9 at night and found the house quite easily. I had my razor, soap and mug in a little case which I use on such occasion.
I knocked at the door and an old man opened the door. His eyes fell on my case. तो ये रात को करीब 9 बजे की बात है ना। ये बार्बर कहता है रात को 9 बजे के बात है और बड़ी आसान तरीके से मैंने उस मकान को प्राप्त कर लिया। मेरे हाथ में इरेजर था, मेरे हाथ में सॉप था, मेरे हाथ में मग था और साथ ही साथ एक लिटिल केस, मतलब एक छोटा सा मतलब केस है ना। और वहाँ पे उस सभी चीज़ को मैं रख करके वहाँ पे चला गया। तो जैसे कि मैं दरवाज़े को खटखटाया, बार्बर कहता है दरवाजे को खटखटाने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या किया, दरवाजे को खोल दिया। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति कहता है यू हैव कम, ही सेड, गो अपस्टेयर, ही इज इन द फ्रंट रूम टू योर राइट, देयर इज नोबडी विथ हिम, he hasn't any friend or relatives in this town, he rented the room only a week ago। तो वो कहता है कि आप आ गए तो आप ऐसा करें ऊपर के स्टेयर में चले जाए, वो वहाँ पे है, यानी जिसको इसे सेव करना है वो व्यक्ति वहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि वो तो 1 हफ्ता पहले ही यहाँ पे आए थे, उसका रिलेटिव्स, उसका फ्रेंड कोई भी वहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। उसके चलते वो अकेला ही वहाँ पे पड़ा है। हाउ लॉन्ग इट इज सिंस दिस हैपेंड, आई आस्क्ड, अबाउट एन आवर, सेड द ओल्ड मैन। तो बार्बर पूछता है ये घटना होकर के कितना समय हो गया। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है लगभग 1 घंटा होगा। आई वॉज ग्लैड ऑफ दिस बिकॉज कॉप्स ऑलवेज सेव बेटर बिफोर दे गेट कम्प्लीटली कोल्ड, है ना। तो ये मतलब पूर्ण रूप से कोल्ड होने से पहले, है ना, क्रॉप्स को क्या कर लेना चाहिए कि सेव कर लेना चाहिए। और इसलिए मैं थोड़ा खुश हो गया। सो आई वेंट इनटू द रूम एंड स्टर्ड ऑफ द लैम्प, टर्न्ड ऑफ द लैम्प, द मैन वाज लेट आउट ऑन द बेड। तो उसके बाद वो कहा, मतलब बार्बर कहता है कि मैं उस कमरे में गया, कमरे में जाने के बाद लाइट को ऑन किया, तो देखा कि वो व्यक्ति जो है बेड के ऊपर पड़ा है। आई गो टू वर्क एंड इन अबाउट हाफ एन आवर गेव हिम ए नाइस क्लीन शेव, विद सच ए नाइस शेव द मैन वुड हैव लेफ्ट फ्रेश इफ ही हैड बीन अलाइव। लगभग आधा घंटा मैंने और वहाँ पे काम किया और बड़े सुंदर तरीके से मैंने उसको शेव कर दिया और मानो ऐसा लगता है कि वो मरा नहीं बल्कि एक जिंदा व्यक्ति है। आई पुट माई थिंग्स बैक इन टू द केस, वेंट डाउन स्टेयर एंड सो द ओल्ड मैन। फिर मैं नीचे आया और नीचे आने के बाद उस ओल्ड मैन से मेरे मुलाकात हो गई। ही फिक्सेस ऑफ ऑल राइट, आई सेड हु इज टू पे। तो उसके बाद उसने कहा कि और अच्छा हुआ, सही है। तो मैंने पूछा कि इसका जो पैसा है वो कौन देगा। तो वो कहता है, क्या कहता है कि हु इज़ टू पे। जब उसको पूछा तो उसने जवाब इस प्रकार दिया, ही गेव मी $30 फॉर ए मनी ऑर्डर to be sent to his brother yesterday, said the old man, I shall pay your fee out of it, how much। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि और मुझे पिछले कल मेरा भाई को भेजने के लिए कुछ पैसा दिया गया है और इनमें से मैं तुम्हें पैसे दूंगा। कितने पैसे हुए। तो बार्बर कहता $5। आई सेड, द ओल्ड मैन हैंडेड मी a $5 note and I went home very well satisfied। तो बुजुर्ग व्यक्ति उसको $5 जैसे वो मांगा वो दे देता है और देने के बाद मैं बड़े खुशी के साथ क्या कर लिया, अपने घर पे चला गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कंटिन्यूड द बार्बर, देयर वाज सम न्यूज। फिर दूसरे दिन और एक घटना होता है। आई हियर दैट ए मैन
had died at 706 Paul Street, and a little while before that a man in the next house had taken poison. तो यहाँ पे एक व्यक्ति है और जिसने जहर खाने के द्वारा इस जगह पे उसका मृत्यु हो गया. People in one house sent for a doctor and those in the other sent for a barber. तो एक घर में, मतलब इसके पड़ोस वाला ही घर है जिस घर में डेथ हुआ था, तो कुछ लोग तो उसी परिवार के बार्बर को बुला रहे थे और कुछ लोग तो डॉक्टर को बुला रहे थे. द फनी पार्ट इज दैट द डॉक्टर एंड आई बोथ मेड ए मिस्टेक. यहाँ पे एक फनी घटना ऐसा होता है कि डॉक्टर और मैं, हम दोनों क्या हो जाते हैं, एक मिस्टेक कर देते हैं. वी गोट इनटू द रॉन्ग हाउस. हम दोनों क्या करते हैं, एक गलत घर पे चले जाते हैं. ही वेंट टू सी द डेड मैन. वो तो क्या करता है, डेड मैन को सी करने के लिए जाता है. द फैमिली डॉक्टर देर वॉज जस्ट गेटिंग रेडी टू लीव. वहाँ पे एक फैमिली डॉक्टर था. वो डॉक्टर मतलब बिल्कुल वहाँ से जाने वाला ही था. मतलब ये दोनों एक गलत जगह पे चले गए. Now this other doctor didn't waste any time. He got out his stomach pump, struck it into the dead man's throat, and started pumping the poison out. All this time I was busy saving the man who had taken poison in the other house. तो ये डॉक्टर जो है मतलब वहाँ पे चला जाता है और मरा हुआ व्यक्ति सोच करके, और मतलब पॉइजन खाया हुआ व्यक्ति सोच करके वो क्या करता है कि उसको पंपिंग करने लगता है. ठीक है ना, वो डेड पर्सन को पंपिंग करने लगता है. तो ऐसी स्थिति पर क्या होता है कि मैं भी दूसरी जगह पे गया हूँ. कहाँ पर, बार्बर कहता है कि जिस जगह पे मतलब जो पॉइजन खाया हुआ व्यक्ति है मैं उसको सेविंग कर रहा हूँ, और ये और दूसरा व्यक्ति जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको क्या कर रहा है कि वो उसको पंपिंग कर रहा है. यानी जहर खाने के बाद पेट में दबाते हैं ना, पेट में दबाने के चक्कर में हो सकता है उसका सारा जहर बाहर आ जाए. एंड लुक एट द फनीस्ट पार्ट ऑफ इट ऑल. तो हम उसके चलते चलते एक फनीस्ट थिंग को वहाँ पे देखते हैं. आफ्टर द अदर डॉक्टर हैड पम्प्ड ऑल द फैमिली डॉक्टर मेडिसिन out of the dead man, he opened his eyes, raised himself up in the bed and asked for coffee. तो वहाँ पे क्या होता है कि उस व्यक्ति मतलब जो फैमिली डॉक्टर उसको जितने भी मेडिसिन मतलब उस डेड मैन को दे दिया था, है ना, तो वो सभी क्या हो गया, बाहर आ गया. और बाहर आने के बाद फिर क्या होता है कि वो अपना आँख खोलता है. आँख खोलने के बाद फिर अपने बेड में बैठता है और बैठ करके कॉफ़ी मांगता है. दिस मेड द फैमिली डॉक्टर मैड. अब ये चीज़ जो है फैमिली डॉक्टर को पागल बना दिया. मतलब वो पागल हो गया कि क्या हो गया. ही गॉट इनटू अ फाइट विद द अदर डॉक्टर एंड बोथ फेल डाउन द स्टेज. तो दोनों डॉक्टर के बीच में एक झगड़ा होता है. झगड़ा होने के बाद ये दोनों और डाउन स्टेयर में गिर जाते हैं. एंड हाउ अबाउट योर मैन who had taken poison. फिर उसको मतलब asked the reporter immediately, timely. तो रिपोर्टर ये पूछता है कि फिर आपका व्यक्ति का क्या हुआ जिस व्यक्ति पॉइजन खा गया था. Him, said the barber, as he snatched off the cloth. He died, of course, but with one of the nicest shave that ever a man had. तो जहर पिया हुआ व्यक्ति क्या करता है कि उस व्यक्ति जो है मतलब जैसे मैं क्लॉथ निकाला और क्लॉथ निकालने के बाद ही वो मतलब वो मर गया, वो डेथ हो गया. तो लेकिन जीवन में एक अच्छा सेविंग उसको मतलब वो पहले कभी ऐसा सेव नहीं किया था और ऐसा सेविंग उसके जीवन में हो गया. As soon as the barber finished, the reporter made a rush for the door and fled away. Call again, shouted the barber at his back. तो ये कहानी सुनने के तुरंत बाद जैसे मतलब उसका सेविंग कंप्लीट हो गया,
वो हड़बड़ होकर के उठ गया और तुरंत वो क्या है वहाँ से चल पड़े। और तभी बार्बर कहता है कि फिर से मैं आपको बुलाऊंगा और मुझे भी आप फिर से बुला लेना। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे पूरा हो जाता है। और ये एक फनी स्टोरी है, फनी बात है, ठीक है ना। तो बस और आपको उसको पढ़ना है, उसका क्वेश्चन आंसर करना है। इसमें ऐसे कोई मतलब एक जो पिकुलर वाली जो घटना होता है ना, हंसी मजाक वाली, ऐसी घटना है। ठीक है बच्चों, may God bless you, have a good day।